Okay, good morning everyone. So we'll continue with the same chapter of civics which we were doing. What is democracy and why democracy? And up to this class we had completed three topics, basically two topics. One was simple definition. In this simple definition we have seen the definition of democracy which is given in your book. And on the basis of that definition, in that definition there were four keywords. Do you anyone remember those four key terms which we had discussed in the class? Four key terms we have seen in that definition. Anyone? People, elected, form of government. कुछ बताया था? I had underlined those lines. Read that definitions for me. Anyone? Shivang, read that definition for me. Quickly. Read that definition for me, which I had started in the very beginning. That was democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. In this, I told you to underline four important terms. One was form of government, another was rulers, then elected, and the last was, what was last word? You don't speak anything or you don't understand, I don't know. Us din I in the board I have written the definition also and underlined also, and I told these are the four important keywords of this definition. And on the basis of that definition and those keywords, we have to understand features of the democracy. उन features को चार वर्ड हमने select किए थे, and on the basis of those four words हमने क्या discuss किया one by one? What are the features of democracy and why features of democracy are important? Because on the basis of features of features of democracy, we differentiate between the democratic and non-democratic form of government. ऐसे देखते हो ना मेरे फेस पर किसी को पता ही नहीं है डेमोक्रेसी क्या है ना? मैंने बताया था फोर वर्ड्स हम ले रहे हैं इस सिंपल डेफिनेशन से, और उन फोर जो टर्म्स हम ले रहे हैं, पीपल, इलेक्टेड, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उनकी वजह से या उनकी बेसिस पे हम चार क्या पढ़ेंगे? फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी से हमें क्या समझ आएगा कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है, कौन सी नॉन डेमोक्रेटिक है. अगर आपको फीचर्स पता ही नहीं होंगे तो यू विल नॉट एबल टू डिफरेंशिएट. आप पता नहीं कर पाओगे कौन सी डेमोक्रेटिक है, नॉन डेमोक्रेटिक है. ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो फॉर डेमोक्रेसी, उसके लिए आपको क्या समझने पड़े? फीचर्स. सो वी हैव कवर्ड फोर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर बच्चों ने सुन लिया क्लास में व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो अलग-अलग क्वेश्चंस एंड ओपिनियंस मैंने बोला था माइंड में आते हैं ऑफ द स्टूडेंट्स. वी आर टेकिंग द एग्जांपल फ्रॉम द बुक आल्सो. Different students had different opinion for democracy. Some were supporting the democracy, some were against the democracy. So now we are talking about such arguments which are against the democracy. It doesn't mean that democracy is not a good form of government, but everything has some good points and some bad points. कुछ positive and कुछ negative points हर चीज के होते हैं. Human being हो, कोई organization हो, कोई भी चीज हो, आपका मोबाइल फोन है, it has positive things also, negative impacts also. ठीक है? So हम पढ़ रहे हैं negative impacts of democracy. So in a question, exam से question comes, what are the disadvantages of democracy? You can write these points. If there is a question, what are the demerits of democracy? Again the same points you can write. So I am starting with now. The first one is leaders keep changing in a democracy. This leads to instability. Why leaders keep changing in a democracy? Because in a democracy there is a government which is elected for how many years? 5 years. And after 5 years, other government will be elected. In this, they are saying in a democracy, instability रहती है इस वजह से. There are various plans, policies. So एक government चलाती है, जब तक क्या होता है government change हो जाती है, तो वो वाले plans, policies वैसे ही रह जाते हैं. तो एक negative point ये है. Other is democracy is all about political competition and powerful. Some of the people think democracy में बस क्या है, हर किसी को क्या बनना है, नेता बनना है. Everyone wants powers. And political system को क्या माना जाता है democracy में? हर कोई this is a struggle for power. जब power हाथ में आती है, they start misusing the power for their own benefits. तो ये कुछ negative points हैं. It doesn't mean कि बस हम negative को याद रखें. होते हैं हर चीज के कुछ negative points. So many people have to be consulted in the democracy that it leads to delay. Like हमने डेमोक्रेसी में देखा है, कोई भी डिसीजन होना है तो फर्स्ट द बिल्स आर पास इन लोकसभा, राज्यसभा, फिर कोई नया लॉ बनता है, इट इज साइन बाय द प्रेसिडेंट, फिर उसे इंप्लीमेंट किया जाता है बाय द एग्जीक्यूटिव इन आवर सोसाइटी. तो डेमोक्रेसी में क्या डिसीजन बहुत स्लो होते हैं. अब कोई किंग होता, कोई मिलिट्री लीडर होता, जैसे पाकिस्तान का था, कोई डिसीजन लेना है वो एक ही दिन में बोल देगा दीज आर द डिसीजंस एंड यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस नाउ. बट जरूरी नहीं है कि जो उसने एक ही दिन में डिसीजंस ले लिए वो करेक्ट हो.
डेमोक्रेसी में डिसीजंस आर टेकिंग टाइम बट दोस डिसीजंस मे बी आर वेरी गुड। तो एक लेकिन हम यहाँ पे उस डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं, अगेंस्ट बात कर रहे हैं, तो अगेंस्ट में क्या आएगा, इसमें डिसीजन से बहुत डिले होते हैं। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। जो हमारे इलेक्टेड लीडर्स होते हैं जिनको हम वोट दिया हमने, बट हो सकता है वो हमारे बारे में अच्छे से जानता ही नहीं है, हमारे रीजन को अच्छे से जानता ही नहीं है, तो जब वो हमारे लिए डिसीजंस लेगा तो मे बी जो डिसीजंस होंगे वो डिसीजन अच्छे नहीं होंगे। डेमोक्रेसी में ये भी होता है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, एंड जब यहाँ पे डेमोक्रेसी इलेक्टोरल फॉर्म है ना, डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, हर एक सिटीजन के पास क्या होती है, राइट टू वोट, और जब इलेक्शंस होते हैं आपने नॉर्मली भी देखा घर के पास आसपास, देयर इज सो मच ऑफ करप्शन, लोग वोट्स खरीदते हैं, अलग अलग गिफ्ट्स देना लोगों से, ठीक है, तो जो डिजर्व नहीं भी करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर ऑफ मसल एंड मनी, अपनी ताकत से, पैसे की ताकत से वो क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं वोट्स को, या लोगों का प्रेफरेंस उनकी तरफ आ जाता है समहाउ। तो करप्शन को आगे मोटिवेशन मिलता है मैं कहूँगा इन द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी। So democracy leads to corruption for based on electoral competition. इसके अंदर लास्ट आ रहा है, ordinary people don't know what is good for them. They should not decide anything. क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी में हर सिटीजन के पास राइट टू वोट होता है, बट डेमोक्रेसी में क्या बोल रहे हैं कि कॉमन पीपल को सब कुछ नहीं पता होता है, तो उसका डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए कॉमन पीपल का। सो ये कुछ आर्गुमेंट्स हैं अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब इसके नीचे देखिए क्या है कंक्लूजन। आर देयर सम अदर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ? अगर हम सोचे तो आर देयर एनी आर्गुमेंट्स या डिसएडवांटेजेस जो आपको लगता है हो सकते हैं, ठीक है। Which of these arguments applies mainly to democracy? Which is of these apply to misuse of any form of government? Which of these do you agree with? तो ये आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, कुछ और भी डिसएग्रीमेंट्स या आर्गुमेंट दे सकते हो डेमोक्रेसी अगेंस्ट, अपार्ट आउट देन आप तो क्या दोगे, आप तो ये याद कर लेना बहुत है, ठीक है। ये बोलता है नहीं कोई कुछ समझने के बाद भी। Clearly democracy is not a magical solution for all the problems, और यहाँ पे आप हम सपोर्ट कर रहे हैं किसको, डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि हम सारा सॉल्यूशन, डेमोक्रेसी आ गई तो पॉवर्टी हट जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हट जाएगी, सब लोग खुश रहेंगे, यूनिटी रहेगी, कोई वॉर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, इट डज नॉट मीन, ठीक है। बट it has not ended poverty in our country and in other parts of the world. Democracy as a form of government only ensures that people take their own decision. डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि बस पीपल अपने डिसीजंस को ले पाए, उनके ऊपर कोई डिक्टेटर ना हो, कोई किंग ना हो, कोई हेड ना हो, कोई मोनार्की सिस्टम ना हो, जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो अपनी चॉइस से ले रहे हैं। डेमोक्रेसी का बस ये मतलब है। बट लोग डेमोक्रेसी को किससे लिंक कर देते हैं कि अगर डेमोक्रेसी आ गई है तो देयर शुड नॉट बी अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, कोई वॉर नहीं होनी चाहिए, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, वो हमारे ऊपर है सब, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब वो नहीं है। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स इन्वॉल्विंग पीपल इन दिस डिसीजन डज लीड टू डिले इन द डिसीजन मेकिंग and frequent changes in the leadership. वही चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है जो हमने पॉइंट्स को पढ़ा है। So, इसका लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। These arguments show that democracy of the kind we see may not be the ideal form of government, but that is not the question we face in real life. The real question we face is different in democracy better than other form of government. जो हम डिस्कशन कर रहे हैं हम इसे लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये कंपेयर करना चाह रहे हैं क्या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एज कंपेयर टू अदर मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिक्टेटर हो, बड़ा कोई लीडर हो, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो ऐसी गवर्नमेंट से बेटर तो क्या हो हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, जहाँ पे हर सिटीजन को एटलीस्ट एक राइट तो है, राइट टू वोट, तो राइट टू टेक डिसीजंस अपनी मर्जी से। और गवर्नमेंट्स में तो क्या है, सिटीजंस आर सप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड बाय द रूलर, बाय द किंग, बाय द क्वीन, ठीक है, जो भी डिक्टेटर, मिलिट्री रूलर लाइक पाकिस्तान का है। तो ये तो हो गया आर्गुमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, आर्गुमेंट्स क्या है फॉर, अब इसका मतलब कौन बताएगा मुझे, क्या है इसका मतलब, आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, these are against democracy and these are in support, these are in support of democracy, that why democracy is good. तो हमने नेगेटिव पॉइंट्स तो देख लिए, नाउ वी विल सी सम पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द पॉजिटिव साइड ऑफ द डेमोक्रेसी। तो इसको स्टार्ट करने के लिए दे आर स्टार्टिंग विद एग्जांपल, जहाँ पे चाइना का एग्जांपल ले रहे हैं। चाइना में फेमाइन आया था, ठीक है, चाइना's फेमाइन ऑफ 1958 से 61, जहाँ पे लोग भूखे मर जाते हैं, ठीक है, was the worst recorded famine in the world history।
इतना गंदा फेमाइन कहीं पर भी कभी नहीं आया है, तो वहाँ की हिस्ट्री में आया है। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन। कितने लोगों की डेथ हो गई थी? अराउंड 3 करोड़। कैन यू इमेजिन 3 करोड़ people died in this famine. During those days, India's economic condition was not much better than China. तो जो ईयर है 1958-61, हमें तो इंडिपेंडेंस मिली थी 47 में, उसके बाद हमने धीरे धीरे ग्रो करना शुरू किया इंडिया में। तो इंडिया की इकोनॉमी को अगर हम कंपेयर करें चाइना से बहुत हम नीचे थे। बट देखा जाए तो फेमाइन कहाँ पे आया? चाइना में आया, इंडिया में फेमाइन नहीं आया इस लेवल का। तो उसके रीजन ये किसको देते हैं? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि चाइना में कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उनका जो पावर्स है सेंट्रलाइज्ड है, और हमारी गवर्नमेंट कैसी? आफ्टर इंडिपेंडेंस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पावर्स बटी हुई हैं, वी वोट एंड इलेक्ट आवर ओन रिप्रेजेंटेटिव। तो ये जो चाइना में फेमाइन आया, जो प्रॉब्लम्स आई, जो 3 करोड़ पीपल की डेथ होती है, उसका रीजन कहीं ना कहीं किसको दिया जा रहा है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे डिसीजंस ले रहे हैं, वो डिसीजंस करेक्ट नहीं ले। कहा? चाइना में। एज कंपेयर टू इंडिया, इंडिया की इकोनॉमी कम थी चाइना से, बट इंडिया ने इस प्रॉब्लम को फेस नहीं किया फेमाइन। So China's sorry, नीचे आ गए थे। Yet India did not have a famine of the kind China had. Economics think, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो इकोनॉमी को स्टडी करते हैं डिटेल्ड वे में, वो क्या बोलते हैं? इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, चाइना में डिफरेंट गवर्नमेंट है, इंडिया में डिफरेंट गवर्नमेंट का फॉर्म है, इसकी वजह से ये हुआ है। पॉलिसीज या जो पॉलिसीज है दोनों कंट्रीज में डिफरेंट है, इसकी वजह से फेमाइन आया चाइना में, वहाँ पे 3 करोड़ पीपल डेड हो गई, और इंडिया में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट अलग है, यहाँ की पॉलिसीज अलग है। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो एक अच्छी चीज जो इंडिया की बताई जाती है कि इंडिया में डेमोक्रेसी थी, मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कैरसिटी। फेमाइन क्या होता है? लोगों को खाने को नहीं मिलता है, भूखमरी हो जाती है। तो चाइना में एक ऐसा फेज आया था जो हमने पढ़ा, 3 करोड़ पीपल मर रहे थे विदाउट फूड। और इंडिया की जो पॉलिसीज थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसने इस तरीके से डिसीजन लिया कि इंडिया में फूड की कमी नहीं हो। जबकि हम कंपेयर करें इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया गरीब था उस टाइम एज कंपेयर टू चाइना, पर फिर भी भूख की और फूड की कमी कहाँ पर हो रही है? चाइना में। क्यों? किसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है? डिसीजंस सही से नहीं लिए गए, गवर्नमेंट्स आर डिफरेंट। इंडिया की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उनकी कैसी गवर्नमेंट थी? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, जो पावर्स को सेंट्रलाइज करती थी। ठीक है, इलेक्शंस होते थे वहां पे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते थे, उनमें माल प्रैक्टिसेस या फ्रॉड हुआ करता। So the government responded by food scarcity in the way that Chinese government did not. They point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. If China too had multiple elections, multi-party election, चाइना में भी अगर मल्टी-पार्टी इलेक्शन होता, अपोजिशन पार्टी होती, तो हो सकता है वहाँ पे भी फेमाइन नहीं आता, क्योंकि पॉलिसीज और प्लान्स को अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाता। If China too had multi-party elections and opposition party and a press free to criticize government, then so many people may not have died in the famine. चाइना से इतने सारे लोग नहीं मरते अगर वहाँ पे कैसी गवर्नमेंट होती? मल्टी पार्टी सिस्टम होता, एक पार्टी रूलिंग पे तो है लेकिन उसके अपोजिशन में पार्टीज हैं कि अगर रूलिंग पार्टी कुछ गलत कर रही है तो हम उसे क्वेश्चन कर सके। एक्टिव यहाँ पे मीडिया होती, मीडिया को यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं था चाइना में। तो ये 2-3 चीजें होती है, या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो चाइना में इतने लोगों की डेथ नहीं होती। तो इसका जो बोल सकते हैं ब्लेम किसके लगाया जाता है? चाइना की गवर्नमेंट के ऊपर, उनकी पॉलिसीज करेक्ट नहीं थी, जिसकी वजह से 3 करोड़ पीपल, इमेजिन कर लो कितने होते हैं। These examples bring out one of the reasons why democracy is considered the best form of government. इस एग्जाम्पल को हम पढ़ के बता सकते हैं कि अराउंड द वर्ल्ड हर कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक क्यों बोलना चाह रही है, क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन एज कंपेयर टू द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स in responding to the needs of the people. A non-democratic government may and can respond to the people. जो non-democratic गवर्नमेंट होती है वो लोगों की प्रॉब्लम्स को रिस्पॉन्ड करती भी है और उनका चॉइस ना हो तो वो नहीं करेगी। बट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री हमने खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया है थ्रू वोटिंग, तो वो हमारे लिए एक्शंस लेते रहते हैं, हमारे लिए अच्छे डिसीजंस लेंगे ही लेंगे। If the rulers don't want to, they don't have to act according to the wishes of the people. तो ये सब को पढ़ने के बाद हमें क्या समझ आता है, वो डार्क हाईलाइटेड ब्लैक कलर में लिखा है, A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. ये अच्छा क्यों होता है अकाउंटेबल? मतलब जो ये गवर्नमेंट होती है, अभी हमारे अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंट्रल में, अगर ये जो पॉलिसीज को इंक्लूड कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं और वो कुछ लोगों को सही नहीं लगती है, प्रोटेस्ट भी करते हैं, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो हमको ये राइट है डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट को हमें आंसर करना पड़ता है हर चीज। अगर डिक्टेटर होता, किंग होता, तो किंग ने जो एक बार डिसीजन ले दिया दैट इज टू बी फॉलोड एंड इंप्लीमेंटेड बाय एवरीवन, जो उसको मानता नहीं है, उसके अगेंस्ट जाता है। मूवीज में देखा
किंग बुलाता था, मरवा देता था, शेर के आगे फेंक दो, इससे कर दो, पनिशमेंट्स डिफरेंट होती थी, तो उसमें कोई लॉ नहीं चलता है, सारी पावर किंग के हाथ में होती है। बट डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा हो सकता है, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है, तो इसीलिए लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसी तरीके से एक स्टोरी और होगा डिस्कशन, उसके आगे दूसरा पॉइंट आएगा। देयर इज अनदर रीजन, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को। तो चाइना इंडिया के एग्जांपल से हमने समझा कि डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट क्यों अच्छी है। चाइना में कितने सारे लोग मरे क्योंकि उनकी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी, डिसीजंस अच्छे नहीं थे गवर्नमेंट में। सेकंड इज देयर इज अनदर रीजन व्हाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजंस देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। A democratic decision always involves many people's discussions and meetings with a number of people put their heads together. They are able to point out possible mistakes. ये बोले डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग मिलकर के डिसीजन लेते हैं, अपना दिमाग सब लगाते हैं, जो कुछ उस डिसीजन में जो गलतियां हो सकती हैं कोई ना कोई पॉइंट आउट कर देता है। जबकि किंग क्या होता है, सिंगल माइंड होता है, उसको जो लग रहा है उसने डिसीजन दे दिया, ये भी गलत हो सकता है। बट इन डेमोक्रेसी बहुत सारे लोग मिलकर के डिसीजन लेते हैं, तो किसी को कोई गलती कर रहा होगा बट दूसरा पॉइंट आउट कर सकता है, नहीं नहीं ऐसा करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब बहुत सारे लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं तो ज्यादातर वो डिसीजन कैसा होता है, करेक्ट होता है, एंड इट इज गुड फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। तो डेमोक्रेसी में तभी इस टाइप का डिसीजन होता है। कहाँ पे होता है, लोकसभा डिस्कशन होता है, राज्यसभा में डिस्कशन होता है किसी पर्टिकुलर बिल या लॉ के ऊपर, फिर उसे प्रेसिडेंट साइन करता है, फिर उसे प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल मिनिस्टर्स या एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं वो लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है पूरा हमारा डिसीजंस लेने का। बट इन अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जो किंग ने बोल दिया या जो मिलिट्री लीडर ने बोल दिया वो डायरेक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है, चाहे वो लोगों के लिए अच्छा हो या गलत हो। तो तभी इसके लास्ट में लिखा देखो, दस डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डेमोक्रेसी में जो डिसीजन तो सभी ले रहे हैं, पर कैसे डिसीजन मेकिंग हो रही है यहाँ पे, क्वालिटी डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन जा रहे हैं दोस डिसीजंस आर मोस्टली करेक्ट एंड गुड फॉर द पीपल ऑफ अ कंट्री। तो क्वालिटी डिसीजन मेकिंग। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट आर्गुमेंट, दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्गुमेंट। थर्ड आर्गुमेंट क्या है, सपोर्ट में ऑफ डेमोक्रेसी। अब एग्जाम में आएगा तो हाइलाइटेड लिखने हैं आपको जल्दी जल्दी, क्योंकि ये सब मतलब एग्जांपल दे सकते हो, बट आप पहला लिखोगे, जैसे पहला आएगा कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Thus democracy improves the quality of decision making. Third, the democracy provides a method to deal with differences and conflicts. अब डेमोक्रेसी में क्या आता है, हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी है, ठीक है, अलग अलग रिलीजन कास्ट के लोग रहते हैं, डिफरेंट कस्टम्स को फॉलो करते हैं, बट उन सबको एक ही कॉन्स्टिट्यूशन से एक ही डिसीजन में सबको सेटिस्फाई करना, ये भी टास्क होता है। तो देखो इसके नीचे क्या लिखा है, इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। कोई भी सोसाइटी होगी सबका डिसीजन एक जैसा नहीं होता, कुछ सपोर्ट करेंगे कुछ अगेंस्ट भी होंगे। These differences are particularly sharp in countries like R। इस टाइप के डिफरेंसेस उन कंट्रीज में ज्यादा दिखता है, जैसे कि एग्जांपल फॉर इंडिया। क्यों शार्प डिवीजन दिखता है यहाँ पर, व्हाट इज द रीजन, यहाँ पे ओपिनियंस डिफरेंट क्यों होते हैं लोगों के, व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ पे ओपिनियन डिफरेंट क्यों है। ब्लैंक माइंड लेके बैठते हो आप लोग, क्या है हमारी कंट्री में प्रॉब्लम, क्या है, इतने ज्यादा डिफरेंसेस क्यों होते हैं ओपिनियन में। इट इज वेरी सिंपल, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले, तो डिफरेंस होगा उनके बीच में, नहीं होगा ओपिनियंस में। अगर सारे हिंदूज होते तो एक जैसा ओपिनियन होता, सारे मुस्लिम्स होते तो एक जैसा ओपिनियन होता, बट वी हैव लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी है तो वी हैव डिफरेंट ओपिनियंस, people belonging to different religion, speak different languages, practice different religions, have different caste, they look at the world very differently। उनके लिए दुनिया, सोसाइटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, and have different preferences। The preferences of the group clash with those with other group। तो preferences वो कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं, तो एक डिसीजन करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, इस टाइप की कंट्रीज में। बट पॉसिबल वो कब हो पा रहा है इंडिया में, अगर इंडिया में डेमोक्रेसी है तो कॉमन डिसीजंस आ जाते हैं। बट अगर ऐसी कंट्री में जिसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है और उसमें डेमोक्रेसी ना हो तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। द प्रेफरेंस ऑफ वन ग्रुप कैन बी क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप्स। हाउ डू वी रिजॉल्व सच अ कॉन्फ्लिक्ट? द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व बाय ब्रूटल पावर। Whichever group is more powerful will dictate its terms and other will have to accept that. But that could lead to a resentment and unhappiness. Different groups may not be able to live together for long in such a way. Democracy provides the only peaceful solution to this problem. डेमोक्रेसी है, जब लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो तो उनके बीच में पीसफुल सॉल्यूशन निकल जाता है। पीसफुल सॉल्यूशन कैसे निकलता है? बाय द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से निकलेगा सॉल्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी वजह से सारे पीसफुल सॉल्यूशन निकल जाते हैं हमारी कंट्री में। No one is permanent loser. Different groups can live with another peacefully. जो इतने सारे लोग हम लोग एक साथ रह पा रहे हैं सोसाइटी में, डिफरेंट कल्चर के लोग रह रहे हैं, पीसफुली रह रहे हैं, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस हैं जो सब एक इंसान को, हर एक सिटीजन को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इस टाइप का रूल्स रेगुलेशन है। चलिए नेक्स्ट इसमें आएगा फिर डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ अ सिटीजन। यहाँ पे सिटीजन को क्या दिया जाता है? राइट टू वोट दी जाती है। तो हर एक की जो डिग्निटी है उसको मेंटेन की जाती है। अंडर अगर हम उसकी बात करें कौन सा रूल? डिक्टेटर, मिलिट्री, यहाँ पे सिटीजन को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। पर डेमोक्रेसी में हर एक इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको राइट टू वोट है, उसको फंडामेंटल राइट्स मिली हुई हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है डेमोक्रेसी का एडवांटेज क्या है? डेमोक्रेसी enhances the dignity of the citizens. As we discussed above, democracy is based on the principle of political equality. जो डेमोक्रेसी है वो किसके ऊपर वर्क करती है? पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हर एक सिटीजन को कैसे ट्रीट करना है? इक्वल। वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी लैंग्वेज का, रिच है, पुअर है, पर डेमोक्रेसी में जो रूल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल लिखे होंगे, वो सबके लिए कैसे होंगे? सेम, कॉमन रूल्स होंगे। एंड द लास्ट इसमें है ब्लैक हाइलाइटेड, उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फाइनली लास्ट पॉइंट है, अगर एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें हम, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी में अगर हमको मिस्टेक कर मिले तो देयर आर प्रोविजंस जहाँ पे हम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। जबकि जो किंग होता है, डिक्टेटर होता है, उसने जो ऑर्डर दे दिया वो बोलता है मैं ही करेक्ट हूँ, लोग कितनी भी प्रॉब्लम फेस करें, ही इज नॉट गोइंग टू चेंज हिज डिसीजन, नीदर वो कभी एक्सेप्ट करेगा कि मैंने गलत डिसीजन लिया। बट इन अ डेमोक्रेसी वेयर पीपल थिंक दे आर, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट की है वो गलत है, फार्मर्स लॉस चल रहा है, तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू प्रूव कि गवर्नमेंट ने जो लॉस को इंप्लीमेंट किया है वो गलत है, कहीं ना कहीं उससे नुकसान होगा किसको? फार्मर्स को। वो जो प्रूव करना चाह रहे हैं वो होगा या नहीं होगा, दैट्स अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो डेमोक्रेसी में हमें अपनी करेक्शंस करने का हमेशा एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखो क्या लिखा हुआ है, as we saw above there is no guarantee that mistakes can be made in democracy. डेमोक्रेसी में मिस्टेक्स हो सकती हैं, नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट। द एडवांटेज इन डेमोक्रेसी, बट डेमोक्रेसी में क्या एडवांटेज है? दैट सच मिस्टेक्स कैन बी हिडन फॉर लॉन्ग देयर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन। जो डेमोक्रेसी में गलतियां होती है वो छुपाई नहीं जा सकती, वो कहीं ना कहीं लोग डिस्कस करते हैं, वो प्रॉब्लम सामने आ जाती है, पर उसके बाद उस प्रॉब्लम्स को या उस मिस्टेक को करेक्ट कर सकती है गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन, ईदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन, या तो जो गवर्नमेंट अपना डिसीजन चेंज कर लेगी, और द रूलर्स कैन बी चेंज, या फिर रूलर्स ही चेंज हो जाएंगे। रूलर्स मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स, सीएम, पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर्स, एमएलएज, एमपीज, दीज आर द रूलर्स। अगर ये हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करेंगे, इनको हम चेंज कर देंगे। कब चेंज कर देंगे? इन द अपकमिंग नेक्स्ट इलेक्शंस, क्योंकि किसके पास पावर है? किसके पास पावर से इलेक्ट करने की? सिटीजन के पास है ना, हम वोट दे देंगे उनको। ओके, सो लेट अस सम अप डेमोक्रेसी। अब सम अप करते हैं, क्या समझ आता है हमें डेमोक्रेसी का। लास्ट पैराग्राफ है इसका, डेमोक्रेसी कैन get us cannot get us everything and it is not a solution to all problem। क्योंकि हम मिसअंडरस्टूड है, हमें लगता है इफ वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री कि डेमोक्रेसी है तो हमारी कंट्री में और कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती है, पॉवर्टी नहीं हो सकती, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। बट डेमोक्रेसी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट इट इज क्लियरली बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव डस्टबिन। होता है ना, कुछ ना होने से अच्छा तो कुछ अच्छा हो, बोलते हैं ना इन हिंदी। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ मिलिट्री रूल, हैविंग अ किंग, मोनार्क इन प्लेस, यहाँ पे हमें कोई भी राइट्स ना मिले, फंडामेंटल राइट्स ना मिले, हमें सप्रेस किया जाए, हमारे बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो कास्ट रिलीजन के बेस पे, उससे बेटर तो क्या है? वी आर हैविंग अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हर सिटीजन को इक्वली ट्रीट कर रहा है। यू आर गेटिंग अ अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट योर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स आल्सो थ्रू यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। यू आर एबल टू वोट, जो 18 इयर्स के ऊपर है, अभी तो आप नहीं करते हो, बट यू विल बी एबल टू वोट वंस यू आर 18 इयर्स प्लस। सो इट ऑफर्स बेटर चांस ऑफ गुड डिसीजंस। डेमोक्रेसी में एक अच्छे हम डिसीजंस ले पाते हैं डिस्कशंस करके। रिस्पेक्ट, लोगों की यहाँ पे सिटीजन की डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है, लोगों की विशेस डिजायर्स को फुलफिल किया जाता है। डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिव टुगेदर, अलग-अलग तरीके के लोग एक साथ रह पाते हैं। इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दिस थिंग्स, इट अलाउज वे ऑफ करेक्टिंग। अगर इनसे कुछ गलती हो भी जाए तो एक नया रास्ता निकाल लेते हैं जिससे दे कैन करेक्ट देयर मिस्टेक्स। That is why democracy is considered the best form of government. That is why democracy is considered the best form of government. So here we have understood the definition of
This democracy and on the basis of important definition we have understand the features of democracy. फिर हमने democracy समझ लिया कि important है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज कौन सी होती है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज कौन सी होती है. तो फिर हमने बात कर ली कि डेमोक्रेसी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, तो नेगेटिव पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए. फिर हमने इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, एंड इट इज वेरी इजी फॉर यू टू राइट द आंसर्स. ये नेगेटिव पॉइंट्स हो गए और जो ब्लैक हाइलाइटेड है ये क्या हो गए, पॉजिटिव एडवांटेजेस हो गए, मेरिट्स. एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम बस ये लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का और एक ब्रॉडर मीनिंग और है, वो भी हम समझ लेंगे. विद दैट वी विल फिनिश दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. And I am giving you certain questions which you have to do because I am not uploading homework for you all. किसी को homework नहीं मिल रहा होगा, देखा था ऑनलाइन व्हाट्सएप पे, नहीं होगा बिकॉज 2000 कमिंग टू स्कूल उनके लिए अपलोड नहीं होगा. किसी टीचर ने कर दिया हो गलती से, अलग बात है. आई एम गिविंग यू सर्टेन क्वेश्चंस, अभी वो लिख लो अपनी नोटबुक में लाइन से एंड यू विल सॉल्व देम.